Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स की। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि चेयर की जाती है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इनके द्वारा कुछ यहाँ पे अप्रूवल्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है कि जूट का यूज़ हम करेंगे फॉर पैकेजिंग। जो भी प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे उनको हम जूट में पैक करके आगे एक्सपोर्ट करें, ना कि उसको प्लास्टिक। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऐसे जूट बैग्स में हमें प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, ना कि प्लास्टिक बैग में। इससे क्या होगा, प्लास्टिक का यूज़ कम होगा। दूसरा, जो इंडिया में जूट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। इससे अगर हम देखें इस स्कीम के द्वारा जस्ट यूज़ ऑफ द जूट, हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे लोगों को, 4 से 40 लाख लोगों, फार्मर्स को यहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इवन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड, बिहार, ये ऐसी जगह, नॉट झारखंड, ये अपार्ट फ्रॉम झारखंड इट इज़ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, त्रिपुरा, ये स्टेट ऐसी हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा जूट इंडस्ट्री में, राइट। तो जूट को हम यहाँ पे अगर हमें एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट, तो जूट पैकेजिंग मटेरियल से उसे पैक करके हम उसे भेजें, ताकि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको भी काफ़ी ग्रोथ मिल सके, राइट। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर, आपको याद रखनी है, ये तो हो गई जूट की पहली चीज़, राइट, कि जूट को हमें प्रमोट करना है, जूट पैकेजिंग को लेके आना है। देन दूसरा आ जाता है आपका अलोकेशन, ये तो पहला था। दूसरा है एडिशनल अलोकेशन ऑफ 2500 करोड़ रुपीस फॉर द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, और ये 30 जून 2024 तक लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम क्या रहेगा कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो हमारे एमएसएमई एक्सपोर्टर्स होते हैं, राइट, उनको एडवांस में पेमेंट मिल जाए, राइट, एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ताकि वो पेमेंट कर सकें, राइट। मान लो उनको कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है, कहीं पे शॉर्ट आ रहे हैं फंडिंग के, तो एक वेरी लो इंटरेस्ट पे वो यहाँ पे पेमेंट ले सकते हैं। छोटा इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा, एंड उनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो इसी के लिए एडिशनल 2500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं फॉर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। नेक्स्ट, इन विच सिटी फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड। अभी हम देख रहे हैं तमिलनाडु में, चेन्नई में फ्लड आई हुई है, राइट, बिकॉज ऑफ अ साइक्लोन। उस साइक्लोन का नाम क्या है, मिचोंग। साइक्लोन का नाम क्या रहेगा, मिचोंग, MICHAUNG। ये मिचोंग नाम इस साइक्लोन को किसके द्वारा दिया गया था, म्यांमार के द्वारा दिया गया था, राइट। एंड तमिलनाडु में जो चेन्नई में फ्लड आई, इसी की वजह से आ रखी है। तो जो फ्लड आई है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं,
कैसे इस फ्लड के पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कैनाल्स में, वाटर बॉडीज को रीजनरेट कर सकते हैं, राइट। तो उसी के लिए ये फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। किस सिटी में? चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया। चेन्नई में जो आपकी खाली कैनाल्स पड़ी हैं, कैनाल्स होती हैं जहां पे आप पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उन कैनाल्स को रिफर्बिश करके उनको वापस से ठीक किया जाएगा ताकि इस फ्लड के पानी को इनमें डायरेक्ट किया जा सके। देन इसी के साथ साथ हम देखेंगे जो माइनर इरिगेशन टैंक्स को बनाया जाएगा, माइनर इरिगेशन टैंक्स को सेटअप किया जाएगा ताकि जो फ्लड का एक्सेस वाटर है उनको यहाँ पे लाया जा सके, यहाँ की वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया जाएगा, एंड एज वेल एज एक सॉफ्टवेयर ताकि इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो रिमोट एक्सेस है, रिमोट ऑपरेशन है, उसको यहाँ पे देखा जा सके, राइट। और इसी के अंडर यहाँ पे याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया 561.29 करोड़ रुपीस फॉर दिस इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेसन प्रोजेक्ट अंडर एनडीएमएफ, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, जो इंक्लूड करता है असिस्टेंस ऑफ 500 करोड़ रुपीस। इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवांस में रिलीज किया द सेंट्रल शेयर ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ऑफ 493.6 करोड़ रुपीस एंड आंध्र प्रदेश के लिए 450 करोड़ रुपीस टू तमिलनाडु, राइट। तो दोनों के लिए रिस्पेक्टिवली आप यहाँ देख सकते हैं अमाउंट को रिलीज किया गया है, इतना आंध्र प्रदेश के लिए एंड 450 करोड़ रुपीस तमिलनाडु के लिए बिकॉज ऑफ दिस मिचांग, ठीक। और मिचांग नाम किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल 2023 एट डैश। तो याद रखेंगे ये फर्स्ट इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल था। कहां पर हुआ? रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट कहां पर है? न्यू दिल्ली में, राइट। एंड इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स एंड 9 से लेके 15 दिसंबर तक ये ऑब्जर्व किया जा रहा है रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। फिर इस पर्टिकुलर इवेंट पे हम देखेंगे आर्टिस्ट, डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया यहाँ पर अपनी आर्ट को, डिजाइन को, आर्किटेक्चर को शोकेस करने आएंगे, राइट। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। फिर इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे एक स्टूडेंट बाइनियल समूनाती ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट। तो दो चीज हो गई, एक तो है फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल और दूसरा है स्टूडेंट बाइनियल जो कि है समूनाती, राइट। ये दोनों चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई। अब ये जो स्टूडेंट बाइनियल है समूनाती, ये भी 9 से 15 दिसंबर हुआ। कहाँ पर हुआ? लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी ललित कला अकेडमी जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा जो भी आपके आर्किटेक्चर की कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो आपके एक्सपर्ट लोग हैं, उनके बीच में यहाँ पर इनका इंटरेक्शन करा के, एक दूसरे को एक्सपोजर प्रोवाइड करा के, वर्कशॉप्स करा के, उसके लिए इस अनुमति को लॉन्च किया गया था, राइट। तो मार्क करके चलेंगे, पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल कहां पर हुआ? रेड फोर्ट में, न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल 2023 रेड फोर्ट दिल्ली में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर Which edition of Hornbill Festival concluded in Nagaland? तो नागालैंड में अभी कौन सा एडिशन हुआ हॉर्नबिल फेस्टिवल का? 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में हम ये हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो ट्राइबल कल्चर है, जो वहाँ के ट्राइबल लोगों का कल्चर है, उसको मेंटेन किया जा सके, उसके रिचनेस को प्रिजर्व किया जा सके। इवन दैट जो नागा हेरिटेज है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करने का काम करता है ये आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। एंड ये कौन सा एडिशन था? ये अभी 24वां एडिशन था जो हमने ऑब्जर्व किया हॉर्नबिल फेस्टिवल का, करेक्ट। किस विलेज में हुआ? नागा हेरिटेज विलेज ऑफ किसामा। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला, ये विलेज 12 किलोमीटर दूर है कोहिमा से, जो कि कैपिटल रहेगी नागालैंड की, ठीक है। फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नेफ्यू रियो एंड गवर्नर ऑफ नागालैंड ला गणेशन, इनके द्वारा मिलकर ये फेस्टिवल को होस्ट किया गया। पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आरबीआई's 5th बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, इंडिया विल बी ग्रोइंग बाय व्हाट जीडीपी इन फिस्कल ईयर 24। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे हैं फिस्कल ईयर 24 के लिए 7% से यहाँ पे ग्रोथ की बात की गई। फिर यहीं पे अगर कुछ और डाटा देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फिस्कल ईयर 24 की, अभी हमने देखा 7% से इंडिया ग्रो करेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं
Q3 की एंड Q4 की, तो Q3 में इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.5% एंड Q4 में इंडिया ग्रो करेगा बाय 6%। यही अगर आप बात करते हैं फिस्कल ईयर 25 की, तो Q1 में इंडिया ग्रो करेगा, जो कि अप्रैल से जून है, इंडिया ग्रो करेगा 6.7% से। सेकेंड क्वार्टर में इंडिया ग्रो करेगा 6.5% से, राइट। एंड थर्ड क्वार्टर में इंडिया ग्रो करेगा 6.4% से। ये तो हो गई जीडीपी की बात। अगर अब मैं सीपीआई डाटा की बात करूं, जो कि हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम करता है, तो यहीं पे अगर मैं देखूं फिस्कल ईयर 24 की अगर मैं बात करूं तो 5.4% से इंडिया ग्रो करेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं थर्ड क्वार्टर की, तो 5.6 ग्रो नहीं करेगा, इतना इन्फ्लेशन रहेगा। वहीं पे थर्ड क्वार्टर में कितना इन्फ्लेशन था, 5.6%। एंड फोर्थ क्वार्टर में फिस्कल ईयर 24 के जो इन्फ्लेशन डाटा रहेगा वो है 5.2%, राइट। मार्क करके चलेंगे। कुछ और चीज़ यहाँ पे एक दो डाटा याद रखेंगे कि अभी जो यूपीआई की पेमेंट लिमिट होती है ना आपकी हॉस्पिटल्स की एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। मतलब अगर आपको हॉस्पिटल में कुछ पेमेंट करनी है या फिर अपनी कॉलेजेस में फीस पे करनी है, तो वो 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, राइट। तो ये थी इंडिया की आरबीआई के द्वारा फिफ्थ बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल ईयर 24 के लिए। और यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ बताई गई फिस्कल ईयर 24 के लिए वो है 7%। और यहाँ पर आप ये सारा डाटा देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं डीपीआईआईटी। इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू एलिवेट इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है कि जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लेके जाना हो, कैसे ले जा सकते हैं, पोर्ट्स, शिप से, ट्रेन्स के द्वारा, फ्लाइट से, राइट, या फिर हम ट्रक से, रोड के थ्रू। तो हमें इन्हें इंडिविजुअल एरिया को डेवलप करना पड़ेगा, पोर्ट्स को नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, डिजिटाइज करना पड़ेगा उसको ताकि और एफिशिएंसी बढ़ सके। ट्रेन्स के लिए हमें बेटर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फ्लाइट्स के लिए जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको और अच्छा करना पड़ेगा, राइट। ट्रक्स के लिए हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, इनको और बेटर करना पड़ेगा। तो इसी के लिए लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, लॉजिस्टिक सेक्टर में और एफिशिएंसी लाने के लिए डीपीआईआईटी इन्होंने किसके साथ टाई अप किया, वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पे टाई अप करा, ताकि इंडिया की लॉजिस्टिक सेक्टर को हम और ग्रोथ दे सकें, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इंफॉर्मेशन वॉज शेयर ड्यूरिंग द डीपीआईआईटी मीटिंग विद वर्ल्ड बैंक टीम न्यू दिल्ली में, जो कि चेयर की गई स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ डीपीआईआईटी सुमिता द्वारा के द्वारा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंप्लीमेंट करेंगे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ताकि डिजिटाइज किया जा सके ऑपरेशंस एट द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम करेगी ताकि एक तो पॉल्यूशन रिलीज ना हो, दूसरा स्पीड बढ़ सके, इंक्रीज कैपेसिटी आ सके उससे, राइट। देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने लॉन्च किया ऑफ एनएलपी मरीन, जो कि एक नेशनल मरीन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रहेगा जो ऑफर करेगा एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस फॉर सीमलेस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज अमंग एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द प्रेस रिलीज। नेक्स्ट आ जाते हैं आरईसी ने साइन किया $200 मिलियन यूरो का लोन अग्रीमेंट विद जर्मनी KfW टू रिफॉर्म डिस्कॉम सेक्टर, राइट। अब डिस्कॉम सेक्टर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे आरईसी लिमिटेड, जो कि है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक महारत्ना सीपीएससी है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इन्होंने 200 मिलियन यूरो का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया, अप्रॉक्सीमेटली 1795 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ, जो कि जर्मनी में है। एंड ये छठा लाइन ऑफ क्रेडिट है आरईसी के लिए विद द इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक। इससे क्या होगा आपका, बेसिकली जो आपकी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, इसमें रिफॉर्म्स लाने की बात की गई, करेक्ट। एंड द स्कीम हैज बीन फॉर 5 ईयर्स। कब से तक ये फिस्कल ईयर 22 से लेके फिस्कल ईयर 26 तक थी आपकी ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। आप इसको यहाँ पे बेटर देख सकते हैं। दिस इज अ रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक स्कीम, जो कि 2022 में लॉन्च की गई थी, फिस्कल ईयर 2022 से फिस्कल ईयर 2026 तक। द स्कीम प्रोवाइड्स रिजल्ट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड अचीविंग बेसिक मिनिमम बेंचमार्क। एंड यहाँ पे आरईसी एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ये नोडल एजेंसीज रहेंगी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस RDSS। अगर आरईसी की मैं बात करूं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार देवांगन रहेंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा और इसको एस्टैब्लिश 1969 में किया गया। KWF डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो CEO रहेंगे स्टेफन विंटेल्स, हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और इसको एस्टैब्लिश किया गया 1948 में।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मिजोरम के, वो हैं लाल दुहोमा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये ओल्डेस्ट पर्सन बने हैं टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, राइट। एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एनी अदर पार्टी अदर देन द मिजो नेशनल फ्रंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वोट में आई टू बी द पावर इन मिजोरम, एंड यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया लाल दुहोमा जी को, जो कि 74 साल के हैं। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इनको। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली अर्जुन मुंडा जी को अपॉइंट किया गया एज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आप यहाँ देख सकते हैं अर्जुन मुंडा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्हीं के अलावा आप देखेंगे राजीव चंद्रशेखर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड MEITY इनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया एज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। वेरेज भारती प्रवीण पावर, राइट, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, राइट। यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूएंसी देख सकते हैं इंडिविजुअल्स की, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर्स के ऊपर आते हैं। तो अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ने, ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड LIC है, राइट, इन्होंने अपना स्टेक HDFC AMC में एसेट मैनेजमेंट कंपनी में रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 9.046% टू जस्ट 6.953%। इससे पहले याद रखेंगे 2022 में इन्होंने 43.27 लाख इक्विटी शेयर्स को बाय किया था, या फिर हम बोलें 2.03% स्टेक को बाय किया था HDFC AMC में इन 2022, लेकिन अब इन्होंने अपने स्टेक को रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 9.046% टू जस्ट 6.953%। HDFC AMC की बात करें तो MD एंड CEO कौन रहेंगे? नवनीत मनोज जी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट EGSA, ये क्या है? ये इजिप्शियन स्पेस एजेंसी है। इन्होंने एक अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर स्पेस कॉपरेशन एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट ऑन ILRS विद विच ऑर्गेनाइजेशन? ILRS क्या है? ILRS है आपका इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। आई रिपीट, इंटरनेशनल रिसर्च लूनर स्टेशन, ठीक है। तो ये ILRS के लिए अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया। EGSA तो हो गया इजिप्शियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने किसके साथ किया? CNSA के साथ, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ, राइट। और ये जो ILRS है ये चाइना ही बना रहा है, ये याद रखेंगे, इंटरनेशनल रिसर्च लूनर स्टेशन। एंड इसमें अभी काफ़ी सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया। जो लेटेस्ट है वो है इजिप्ट, इससे पहले साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2023 सितंबर में। एंड इसी के अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी कंट्रीज इसका पार्ट आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा नहीं हुआ है बट लेट मी टेल यू, कंट्रीज जैसे आपकी पाकिस्तान, राइट, पाकिस्तान के अलावा फिर आ जाता है आपका बेलारूस, अजरबैजान, रशिया, वेनेजुला, साउथ अफ्रीका, राइट, एंड इजिप्ट। अब ये पार्ट रहेंगी इस ILRS का, ठीक है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, करेक्ट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन? ये चाइना के द्वारा ही मिशन को लॉन्च किया गया था। और इजिप्ट अभी पहली अरब कंट्री बन गई है जिन्होंने इस ILRS को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया द स्कीम एंड अ वेब पोर्टल ऑफ NAEG अवार्ड 2024? NAEG क्या है? नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस। तो DARPG के द्वारा लॉन्च किया गया था ये स्कीम एंड अ वेब पोर्टल और NAEG नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2024 के लिए, करेक्ट। इसके अंडर आपके सिल्वर एंड गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। टोटल 16 अवार्ड्स दिए गए हैं, 10 गोल्ड 6 सिल्वर। जिनको गोल्ड मिलेगा 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे राशि मिलेगी और 6 लाख रुपए की राशि 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी फॉर द सिल्वर अवार्डी। ये जो अवार्ड है आपको याद रखना है 5 कैटेगरीज में दिया जाएगा। गवर्नमेंट प्रोसेस फॉर री इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई गवर्नेंस, रिसर्च ऑन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रेप्लिकेशन ऑफ टॉप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एंड इनिशिएटिव्स। तो ये 5 चीजें याद रखनी है, राइट। इन कैटेगरी में यहाँ पे 2024 का नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिया जाएगा। एंड इसके नॉमिनेशन 2024 के अवार्ड्स के लिए 29 दिसंबर 2023 तक आपको देने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सार्क चार्टर डे। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, राइट। तो सार्क चार्टर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 दिसंबर को हर साल, करेक्ट। एंड इट इज टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ द सार्क चार्टर ऑन 8 दिसंबर 1985 इन ढाका, बांग्लादेश, करेक्ट। और ये 8 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं 39 सार्क चार्टर डे, मार्क करके चलेंगे 39 सार्क चार्टर डे है। सार्क की बात करें तो यहाँ पे 8 कंट्रीज यहाँ पे पार्ट रहती हैं साउथ एशिया की, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका।
एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द अडॉप्शन ऑफ द सार्क चार्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट समिट जो कि ढाका बांग्लादेश में हुई ऑन 7-8 दिसंबर इन 1985. सार्क चार्टर डे हैज़ बीन ऑब्जर्व ऑन 8th ऑफ दिसंबर सिंस 1985. और सार्क की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल गोलम सावर रहेंगे जो ये बांग्लादेश के हैं. इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में रहेगा. चेयरमैनशिप भी नेपाल के पास है. 1985 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम 2023 जो कि 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. राइट एंड यहीं पे मार्क करके चलेंगे कि हर साल 9 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं. करेक्ट. और 9 दिसंबर 2023 इट मार्क्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन जो कि था पहला ह्यूमन राइट्स ट्रीटी अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. एंड पहली बार आप इस डे को कब ऑब्जर्व करते हैं तो पहली बार 9 दिसंबर 2015 में इसको ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स डे. 10 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन राइट्स डे एंड इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस एंड मोबिलाइज द पॉलिटिकल विल ताकि राइट्स को और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. राइट. द डे ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948 और 2023 में 75th एनिवर्सरी थी ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. करेक्ट. और ये 30th एनिवर्सरी से कंसाइड करती है विद द 30th एनिवर्सरी ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूएन ह्यूमन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट. फिर यहीं पे आप इन चीज़ों को इग्नोर करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे जो कि है थीम. थीम क्या रहेगी? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. जस्टिस फॉर ऑल. आई रिपीट, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. ये आपकी थीम रहेगी ह्यूमन राइट्स डे 2023 की. और ह्यूमन राइट्स डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1950 में. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. तो अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर. कैबिनेट अप्रूवल्स हम देख ही चुके हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट वर्थ 561.929 करोड़ रुपीस. कहाँ पर? चेन्नई में, तमिलनाडु में. मिचुआंग आपके साइक्लोन की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ रखी है और मिचुआंग नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा. देन पीएम ने इनॉग्रेट किया पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल रेड फोर्ट पर इन न्यू दिल्ली. 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल कंक्लूडेड कहाँ पर? नागालैंड में. हाईलाइट्स ऑफ आरबीआई's 5th बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फिस्कल ईयर 24 एंड इंडिया की रियल जीडीपी टू ग्रो एट 7% इन फिस्कल ईयर 24. DPIIT collaborates with World Bank to elevate India's logistic efficiency. REC ने साइन किया 200 मिलियन यूरो लोन अग्रीमेंट विद जर्मनीज KfW to reform DISCOM. लाल दुहोमा sworn in as the Chief Minister of Mizoram. 4 यूनियन मिनिस्टर्स गेट एडिशनल चार्ज एंड अर्जुन मुंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर. LIC ने रिड्यूस किया स्टेक इन HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू 6.953% जो कि पहले था 9.046%. देन चाइना के CNSA एंड इजिप्ट के EGSA राइट इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया फॉर स्पेस कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट ऑन ILRS. और ये ILRS किसका कंसेप्ट था, किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? चाइना के द्वारा. देन DARPJ ने लॉन्च किया स्कीम एंड वेब पोर्टल फॉर NAEG अवार्ड 2024 नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस. सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम ऑब्जर्व किया गया 9 दिसंबर को. ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 दिसंबर को. तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी बेनिफिट देगा. सबसे पहला है नेम द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जो कि अभी फ्लैग ऑफ किया गया मुंबई महाराष्ट्र से. इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर. सबसे पहले तो इसका नाम बताओ क्या रहेगा. ये है कोस्टा सेरिना. ये इसका नाम रहेगा कोस्टा सेरिना, इंडिया के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का. ये कहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट हुआ था, वहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया. किसके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया? सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया. करेक्ट. किसके द्वारा बनाया गया है? इट हैज़ बिन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर पूछा जाए कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो फिनकेन टिएरी ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा. इनके द्वारा ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, इनके द्वारा आपका पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरिना इसको कंस्ट्रक्ट करा गया. फिर इसी के अंडर याद रखेंगे इंडिया का एक है मैरीटाइम अमृतकाल विजन. इसके अंडर यहाँ पे एम रहेगा कि 2047 तक हम ऐसे 25 ऑपरेशनल क्रूज टर्मिनल्स को सेटअप कर सकें जहाँ पे 5 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पर एनुअली ट्रैवल कर पाएंगे, इसका यूज ले पाएंगे.
ठीक है, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़े, और ऐसे 25 क्रूज टर्मिनल्स को सेटअप करने की बात की गई। तो कोस्टा सेरिना यहाँ पे नाम याद रखेंगे, इंडिया के पहले क्रूज लाइनर का नाम रहेगा, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कोस्टा सेरिना। सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। कोस्टा सेरिना इसका नाम रहेगा और पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट के दौरान इसको लॉन्च किया गया। एंड एम क्या है, ताकि क्रूजिंग एंड टूरिज्म को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट सेकेंड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया? सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी? ये कोविड के टाइम पे 2020 में लॉन्च की गई थी, ताकि 5 किलोग्राम्स ऑफ फूड प्रोवाइड करा जा सके पर पर्सन पर मंथ। हर महीने हर आदमी को 5 किलोग्राम तक का फूड प्रोवाइड कराने की बात की गई, अनाज प्रोवाइड कराने की बात की गई। बिकॉज कोविड के टाइम पे हमने देखा जॉब चली गई थी, लॉकडाउन लग गया था, किसी के पास जॉब नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे अपने घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो उस टाइम पर फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए, लोगों को हम देखें माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो जाए, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, कमजोरी आएगी, बीमारी हो जाएंगी उनको। तो उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए, वो सिचुएशन ना आ सके, तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा, कि हर महीने 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन हम प्रोवाइड करा सकें एट सब्सिडाइज रेट, जहाँ पे राइस, व्हीट या ग्रेन्स ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप यहाँ पे जाइए, अपना आधा वो राशन कार्ड दिखाइए और यहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या जाता है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है? तो आने वाले 5 साल तक यहाँ पे स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ देख सकते हैं, इस स्कीम को इनिशियली 2020 में कोविड-19 के टाइम पे लॉन्च किया गया था, एंड इट इज ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंट्री ने अभी $44.7 मिलियन का फंड सेटअप किया है टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन उत्तराखंड एंड द हंगर प्रोजेक्ट। बेसिकली जो हंगर प्रोजेक्ट है, इसके लिए $44.7 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। किस कंट्री के द्वारा? तो ये फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी नॉर्वे के द्वारा टू इंडिया के प्रोजेक्ट, जो कि है द हंगर प्रोजेक्ट। यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर बात की जाएगी, लोकल वैल्यू चेन, सप्लाई चेन्स को डेवलप करने की बात की जाएगी, जो स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प करने की बात की जाएगी। करेक्ट, तो बेसिकली फूड सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने की बात की जाएगी, उसको हेल्प करने की, सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी विद दिस $44.7 मिलियन। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो फंडिंग प्रोवाइड की गई है, ये आने वाले 3 साल के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड कराई गई है अंटिल सितंबर 2026। नॉर्वे के द्वारा ये फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, और इस फंडिंग से हम देखेंगे काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कराए जाएंगे। तो राइट ऑप्शन बनता है नॉर्वे का एड आया फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि है $44.7 मिलियन का, और आने वाले 3 साल के लिए रहेगा। और किस लिए है? द हंगर प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, किस चैनल ने अभी कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? तो कौन सा चैनल है? वो है कलर्स। कलर्स चैनल जो आपका वाईकॉम 18 का चैनल है एंड इंडियाज लीडिंग हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कलर्स, इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। और किस लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया? ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा सके, एंड जो गर्ल चाइल्ड अबैंडनमेंट होता है, जो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, बच्चों को, राइट, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करने की बात की गई। लड़कियों को भी पढ़ाने की बात की गई, लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए उनको, मतलब जैसे हम लड़कों को ट्रीट करते हैं सिमिलरली बिल्कुल वैसे यहाँ पर लड़कियों को भी सारे राइट्स उनके प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। अब कलर्स कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि एक चैनल है, तो ये सोशल ड्रामा इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा एक, जो कि है डोरी के नाम से, जो कि एयर किया जाएगा 6 नवंबर 2023 से। तो इससे रेज की जाएगी अवेयरनेस अबाउट द गर्ल चाइल्ड अबैंडनमेंट थ्रू देयर लेटेस्ट सोशल ड्रामा, जो कि है डोरी। फिर इसी के साथ याद रखेंगे एक 24 आवर इमरजेंसी टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1028। इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये चैनल ने कोलैबोरेट किया, और ये चैनल का आपका हेल्पलाइन नंबर एड्स के दौरान,
ड्यूरिंग द शो ये सारा शोकेस किया जाएगा ताकि जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको इसके बारे में अवेयर किया जा सके। ठीक है, तो 1098 हेल्पलाइन नंबर है। एंड डोरी, यहाँ पर एक सोशल ड्रामा शो लेटेस्ट लॉन्च किया जाएगा कलर्स चैनल पे। और पूछा जाए तो किस चैनल ने कोलैबोरेट किया, तो कलर्स ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पहली बार इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च किया गया था, 2015 में ये इनिशिएटिव आया था, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो वीमेन एम्पावरमेंट है, उस पर काम किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी स्वीडन की एक कंपनी है साब। करेक्ट, स्वीडन की कंपनी साब एबी, ये वो पहली इंडिया की कंपनी बनी जिसकी जो पहली कंपनी बनी इन इंडिया जिसमें 100% एफडीआई अप्रूव किया गया है इन डिफेंस सेक्टर। आई रिपीट, स्वीडिश डिफेंस कंपनी Saab AB has become the first foreign company to get Government of India's approval for 100% foreign direct investment in defense sector। और ये जो वैल्यू रहेगी इस एफडीआई की वो कितनी है, 500 करोड़ रुपए। इस इन्वेस्टमेंट से, इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से साब ये कंपनी क्या करेगी, ये रॉकेट लॉन्चर बनाएगी इंडिया में। और कौन से रॉकेट लॉन्चर, कार्ल गुस्ताफ M4, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में करेगी और इसी के लिए यहाँ पे 100% एफडीआई अप्रूव किया गया है। तो मार्क करके चलेंगे, साब एबी कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है। स्टॉकहोम स्वीडन में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। माइकल जोहानसन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट रहेंगे। करेक्ट, इनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गया फॉर 100% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। और यहाँ पे ये 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ताकि कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसीसी ने अभी एएस राजीव जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 6 months टिल सुपरन्यूएशन। राइट, आई रिपीट, एसीसी ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ एएस राजीव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर द नेक्स्ट 6 months। करेक्ट, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज याद रखेंगे, एसीसी ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ एमवी राव जो कि है मातम वेंकटा राव। करेक्ट, ये एमडी एंड सीईओ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया है कब तक, 31 जुलाई 2025 तक। दोनों चीज याद रखेंगे। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर सेंटर ने अपॉइंट किया नोडल ऑफिसर्स टू एक्ट अगेंस्ट पायरेसी, फिल्म पायरेसी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं 12 नोडल ऑफिसर्स को फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन टू कॉम्बैट फिल्म पायरेसी। अब जैसे फिल्म पायरेसी हो कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मूवी लॉन्च की गई और उसको आप देखते हैं टेलीग्राम पे लॉन्च कर दिया, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेते हैं लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए, यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो ऐसे केसेस में जो फिल्म पायरेसी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड जो फिल्म के राइट्स हैं उनके ऑनर्स के पास रहें, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी 12 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं सेंटर के द्वारा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म क्या आ जाता है, कितने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, 12 नोडल ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, हर साल 5 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार की जो थीम रहेगी वो क्या है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। और पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 2016 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। 6 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। 6 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज जो कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का होता है ऑन आवर एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कहीं पे बॉम्ब फट रहा है तो उससे पॉल्यूशन तो क्रिएट हो रही है, राइट। अगर कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब फटा जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था तो वहाँ का एरिया कितना ज़्यादा एकदम रहने लायक नहीं रहा था, प्लस पॉल्यूशन, प्लस उसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट, और ऊपर से जो रेडिएशन फैला था वो अलग। ठीक है, तो 6 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। और इस बार 2023 में कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया था, ये 22वां एडिशन था आपका इस डे का। ठीक, चलिए
और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 2002 में। नेक्स्ट आ जाता है फिर स्टेट न्यूज़। अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने 3 MOU साइन किए हैं। एक साइन किया है IESA के साथ, सिनॉप्सिस एंड ESC। अगर बात करें IESA, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इनके साथ MOU साइन किया ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप किया जा सके ओडिशा में। करेक्ट। IESA क्या है? इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। सिनॉप्सिस के साथ यहाँ पे MOU साइन किया ताकि जो वर्कफोर्स है उसको यहाँ पे स्किल बनाया जा सके। करेक्ट, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, वर्कफोर्स डेवलपमेंट की बात की गई एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डोमेन्स एंड इंटर्नशिप्स की यहाँ इंटर्नशिप्स कराने की बात की गई, प्लेसमेंट्स जॉब्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। और तीसरा आ जाता है ESC, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इनके साथ यहाँ पे टाइप किया गया फॉर IT एनेबल्ड सर्विसेज। करेक्ट, यहाँ पे बिल्टअप स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफिसेज प्रोवाइड किए जाएंगे ओडिशा में, ताकि जो सेमीकंडक्टर्स की कंपनी है जो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी, उनके लिए ऑफिस प्रोवाइड कराने की बात की गई। तो ये 3 MOU साइन किए गए हैं इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इसी के साथ साथ एक और याद रखेंगे, ओडिशा फॉर सिलिकॉन 2023। ओडिशा फॉर सिलिकॉन 2023 ये एक प्रोग्राम अभी कराया गया था ओडिशा के द्वारा, एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, इसका मेन नेम है कि यूथ को यहाँ पे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना एंड ओडिशा में जो आपका सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है ना, उसको बढ़ावा देना। जब सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम अपने आप बनी जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो यूथ के लिए है वो तो अपने आप ही आ जाएंगी, राइट। तो ओडिशा फॉर सिलिकॉन ये क्या था? एक सेमीकंडक्टर इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को सेटअप करना इन ओडिशा। करेक्ट, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर केरला को ऑनर किया गया विद द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से। किस स्टेट को ऑनर किया गया ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से? तो वो रहेंगी केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को। करेक्ट। एंड सोर एक्सक्लूजन्स अहमदाबाद गुजरात को यहाँ पर किस कैटेगरी में सम्मानित किया गया? बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस कैटेगरी। ठीक है, बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस कैटेगरी के अंडर इनको सोर एक्सक्लूजन्स अहमदाबाद गुजरात को सम्मानित किया गया। एंड अगर पूछा जाए किसको ऑनर किया गया ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से? केरला को। केरला काफ़ी टूरिज्म के लिए मशहूर है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आपके LPs को, बैक वाटर्स को देखने आते हैं। करेक्ट, तो इसलिए याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डेस्टिनेशन बन जाती है केरला फॉर टूरिज्म, राइट। मार्क करके चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का लास्ट जो रह गया वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने अभी इनॉग्रेट किया पार्वती भवन एंड नव दुर्गा पाथ स्काई वॉक प्रोजेक्ट, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। इस स्काई वॉक की बात करें, ये एक पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर है दैट इज बिल्ट एंड एलिवेशन ऑफ 20 फुट एंड इसको 15.5 करोड़ के करीब इसकी लागत आई थी बनाने के लिए। पार्वती भवन की बात करें, ये लिंक्ड है आपके स्काई वॉक से एंड ये इंश्योर करता है पिलग्रिम्स प्रोसीड डायरेक्टली टू द श्राइन आफ्टर डिपॉजिटिंग देयर लगेज। इट हैज 1500 लॉकर्स दैट कैटर्स 10,000 to 15,000 पिलग्रिम्स एवरी डे। तो ये आपके दो पार्वती भवन एंड नव दुर्गा स्काई वॉक प्रोजेक्ट, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा इनॉग्रेट करे गए थे। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, गरबा वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को, जो किस स्टेट से आता है? दूसरा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनेल 2023? एंड तीसरा, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड हरित सागर गाइडलाइन? तो ये हरित सागर गाइडलाइंस किनके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए उन सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे मैक्सिमम कमेंट चाहिए सभी बच्चों से। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is
9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.